चीफ गेस्ट हम सभी काहूट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हमने इस क्विज में जो कुछ जाना है सीखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उस काहूट में है तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमने इस गेम से क्या क्या सीखा है तो उसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सर लेट्स स्टार्ट। So first of all, let's give a very big hand to all the participating teams and all the very best. So first of all, we shall start with an introduction round. Your name please, your school and your email ID. Be seated. Good afternoon everyone, my name is Sarah Chauhan and I am from Sacred Heart Convent. I wish to pursue civil services as my career. Well, good afternoon everyone. My name is Odis Vijayavatia. I study in Sacred Heart Convent School in class 12. I study in art stream, so certainly I pursue a career that is affiliated with it. Okay, very well done. All the best. Yes. My name is Hitesh Sharma. Christian Children's Secondary School. I pursued 12th class non-medical and I want to become an IAS officer. You want to become an IAS officer? IAS officer करते क्या है? क्या रोल करता है आपका सोसाइटी में? To administrate the working of that area and their field. Okay, all the best. My name is Shreya Verma and I read in Christian Senior Secondary School 22 and I am in +1 class and my stream is non-medical and I want to join civil services. I want to join civil services. आपका फेवरेट अल्फाबेट था D, लेकिन लकी अल्फाबेट, लेकिन अब हो गया B. तो आपको लगता है इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? Okay, all the best. Team C. Good afternoon, sir. My name is Abhi Thakur. I am from Chapter School and I opted humanities. I would like to pursue civil services or in teaching. Thank you. Good morning, everyone. My name is Abhinandan Sampla and I am representing and I am a student of Chapter School Shimla. I have no present aims currently, so I think of it in the future. Okay, so all the best for your future. All the best team C. हम आते हैं टीम D के पास. टीम D. Good afternoon, sir. My name is Bhumika Kaushal and I am a student of Portmore and my aim in life is to become a civil servant in my life. Good afternoon everyone, my name is Anshul Sharma and I am a student of class 12 of Portmore School and I aspire to be a HAS officer. I aspire to be a HAS officer. HAS officer means they are similar as the IAS officer. Means Himachal Administrative Services. So all the best team D. Team E के पास हम आते हैं. Good afternoon, sir. I am from DAV Tutu School and my name is Sarika Parmar. I study in 9th class. Good afternoon, sir. My name is Dikshita and I am in 9th grade and I study in DAV Tutu and I want to become a scientist. You want to become a scientist and you want to become? I want to go in administrative side. Administrative sector. So you are not yet completely sure about it. You have not decided. So all the best for the game and all the best for your future. Good afternoon, sir. My name is Arman Thakur. I came from DAV Lakkad Bazaar and I don't have a particular aim in the future, so I'll think about it. Good afternoon, sir. My name is Avinash Sharma and I'm the student of DAV Lakkad Bazaar Shimla and my name is to clear UPSC. Clear? ये UPSC क्या होता है? Union Public Service Commission that holds all the union level exam like your MBA, IAS and all the civil service exam. Okay. So all the very best. हमारे बीच में हमारे टीम के सदस्य हैं प्रदीप कंवर सर. हमारे साथ यहाँ जो टेक्निकल जो हमारे सहयोगी रहेंगे हरी शर्मा सर लेक्चर मैथमेटिक्स. हमारे साथ हैं विनोद गुप्ता सर. इज अ ड्राइंग मास्टर एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटगे. तो आपके सामने ये एक इंटरफेस है. सर लाइट्स ऑफ कर दें. दिस इज इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन और बीच में एक लोगो आपको दिख रहा होगा शिमला द सिटी ऑफ 7 हिल्स. और इन्हीं 7 पहाड़ियों के आसपास
इस शिमला शहर को सजोया गया था और इसके पीछे एक जो मंशा थी, इसके पीछे जो विचार था कि जिस तरह से रोम, जो कि एक समय में द ग्रेट रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, वो 7 पहाड़ियों पर बसा था, शिमला भी ब्रिटिश एम्पायर को, द इंपीरियल ब्रिटिश एम्पायर को उसी तरह से रिप्रेजेंट करे। तो वही एक विचार था शायद ब्रिटिशर्स का, जिसके तहत शिमला को 7 पहाड़ियों पर यहाँ पर बसाया गया। तो उन 7 पहाड़ियों के विषय में भी हम बहुत कुछ आपसे जानेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे और आप खुद को इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो सर नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 5 राउंड्स हैं, एमसीक्यूज, विजुअल्स, पॉलिटी, आर्किटेक्चर एंड डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी ऑफ शिमला। शिमला की डेमोग्राफी क्या है, जियोग्राफी क्या है, थोड़े बहुत प्रश्न इसमें से हैं। और जब हम पॉलिटी के विषय में डिस्कस करेंगे कि शिमला ने किस तरह से एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को अफेक्ट किया है, उसके विषय में हम इसके तहत बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, दैट इज, इससे पहले आप सभी को रूल्स क्लियर हैं? ओके, स्कोर बोर्ड पर मेरे साथ रहेंगे सर। एक लाइट शायद हमें ऑन रखनी पड़ेगी स्कोर बोर्ड के लिए। ओके सर, टाइम कीपर थोड़ी देर में हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो आप सभी भी अपनी जगह पर यहीं पर बैठे रहें। तो हमें ऑडियंस की तरफ से डिमांड आई थी कि वो भी कहूत पर एक थोड़ा सा अपनी नॉलेज को शिमला के बारे में चेक करना चाहते हैं। तो आप सभी के साथ हम एक छोटी सी 10 प्रश्न की एक गेम खेलेंगे। तो क्या सभी तैयार हैं आप उसके लिए? उतनी देर में हमारे चीफ गेस्ट भी हमारे बीच में आ जाएंगे। तो हम एक छोटा सा कहूत आप सभी के साथ यहाँ पर खेलेंगे। तो आप सभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, बट विदाउट मोबाइल, यू नीड नॉट टू गेट देम, राइट?
आप सभी के पास पेन और पेपर है? पेन और पेपर, गाइड टीचर्स प्लीज सभी बच्चों को, हरी सर हमारे पास पेपर्स थे, शायद ब्लैंक पेपर्स पड़े हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड करवा दें प्लीज। आप इसमें से हाफ दे सकते हैं उनको, वैसे ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस हमारे पास है नहीं इसमें। सो सर हम एमसीक्यू राउंड से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड है हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और उम्मीद है कि जैसे उसके दिमाग की बत्ती जल रही है, आपकी भी जल जाएगी, लगता है आपको? ओके, सो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक। अब फिर से इसमें जैसे हमने पहले बात की थी कि क्विज़ कि बहुत सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा लक। अपने लक से आपने अपनी पोजीशंस यहां पर डिसाइड कर दी। अब आएंगे नंबर पर। अभी तक हम थे अल्फाबेट पर। और कौन सा नंबर, विच वन इज अ फेवरेट नंबर। आप अपना फेवरेट नंबर चुनेंगे और उस नंबर के पीछे आपके लिए छुपे होंगे आपका प्रश्न, और उस प्रश्न के साथ आपके लिए कुछ मार्क्स की 10, 5 और 0 with no negative marking, right? So what is your favorite number? Your favorite number please, टीम ए। हम पहला राउंड टीम ए से शुरू करेंगे। यस, नंबर 9। नंबर 9, नंबर 9 इनका फेवरेट नंबर है। और हम देखते हैं कि नंबर 9 पर इनके लिए क्या छिपा है। सर नंबर 9 was the first speaker of हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले जो स्पीकर थे उनका नाम आपको बताना है, और आपके 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब। P. जयवंत राम। What is P? पंडित जयवंत राम। It is पंडित जयवंत राम इनका आंसर आया। और हमारे पास इसमें कुछ और स्पीकर्स भी थे, श्री देशराज महाजन, श्री कुलतार चंद राणा एंड श्री कृष्ण चंद। और देखें कंप्यूटर जी से पूछें हम कि क्या इनका उत्तर सही है। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? ये तो बता रहे हैं दिस इज राइट आंसर। तो टीम ए को मिलते हैं 10 अंक। सो बहुत अच्छी शुरुआत टीम ए। टीम बी 10 अंक, 10 मार्क्स। टीम बी आपका फेवरेट नंबर। सभी ऑड नंबर्स वाले हैं। नंबर 7 देखिए जरा, नंबर 7 के पीछे आपके लिए क्या छिपा है। नेम द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु सर्व फ्रॉम 6 May 1967 to 24 January 1971। और आपके 4 ऑप्शन आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने। ऑप्शन सी आपका सी इज लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। टीम एफ आप क्या कहते हैं, क्या ये सही है गलत? शायद सही होंगे आप।
It's wrong. Yes, audience. मेजर जनरल एम.एस. हिम्मत सिंह जी लास्ट पूछा है शायद, लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर. Yes, it is right answer. M.S. Himmat Singh was the, I think, he was the first lieutenant governor. जहाँ तक मेरी जानकारी, he was the first lieutenant governor. So आपको मिलते हैं 10 अंक. अगला प्रश्न के लिए हम आते हैं टीम सी के पास. टीम सी नंबर 1. सर नंबर 1. Who was the first deputy chief commissioner? तो ध्यान से देखें. One was chief commissioner. It was the chief commissioner province. एक chief commissioner होते थे और एक उनके साथ उनके deputy होते थे. तो who was the first deputy chief commissioner of हिमाचल प्रदेश? आपके 4 ऑप्शन आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर आपके सामने. आपका समय शुरू होता है सर. टाइम. Option A is Mr. E. Peddlemore. आपका क्या है? सही है. I think wasn't it Mr. N.C. Mehta? Chief Commissioner. अच्छा, N.C. Mehta is first Chief Commissioner and Peddlemore is first Deputy. And who was the second Chief Commissioner? Yes, from deputy he became the chief commissioner. So देखें जरा ये सही है गलत है. Okay, it's the right answer, Mr. E. Peddlemore. तो 10 marks. हम आते हैं टीम डी के पास. टीम डी. डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं. तो नंबर 3 आपका फेवरेट नंबर है? बिल्कुल नहीं. फेवरेट नंबर कौन सा है? फेवरेट कोई भी नहीं है. तो सर टीम डी ने चूज किया है नंबर 3. नंबर 3. On 15th April 1948, 30 Asphalt Princely states of Punjab and Shimla Hills were organized into 4 districts of Himachal Pradesh. जो भी 30 पहाड़ी रियासतें थी, कुछ उसमें शिमला हिल स्टेट्स थी और कुछ पंजाब हिल स्टेट्स थी, उनको रिऑर्गेनाइज करके 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी. कहूत में भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी. तो आपको बताना है इनमें से कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी थी. इसी बीच हमारे मध्य में हमारे आज के मुख्य अतिथि AC2DC मैम पधार चुके हैं. कृपया करतल ध्वनि से मैम का स्वागत कीजिए. वेलकम मैम. मैम आपकी जानकारी के लिए इससे पहले हमने स्क्रीनिंग राउंड किया जो कहूत लाइव प्लेटफॉर्म ऐप पर था और स्क्रीनिंग राउंड के बाद हमारे पास ये 6 टीम्स आई हैं. प्लीज बी सीटेड. ये 6 टीम्स हमारे पास आई हैं और इन 6 टीम्स के साथ हम ये क्विज खेल रहे हैं यहाँ पर. तो इसमें 5 राउंड्स रहेंगे और पहला राउंड जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो दिस इज MCQ टाइप क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स विल हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, वन ऑप्शन फ्रॉम दिस. सो मैम कैन यू कंटिन्यू? ओके, थैंक यू मैम. तो on 15th April 1948, 30 princely states were organized into 4 districts. आपको पहचानना है कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी थी और आपके ऑप्शन मॉनिटर स्क्रीन पर आपके सामने हैं. First option. This is option 4D. फर्स्ट ऑप्शन. इनका उत्तर आया है, सर एक मिनट रुक जाए. इनका उत्तर आया है
ऑप्शन ए चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। अब इनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट्स तो मैं आज शायद देख पाता हूँ, चंबा, मंडी, सिरमौर। ये महासू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है आज? हाँ, इसका नेम शिमला हो गया है। अच्छा, ऐसा है। देखो, एक हमें और जानकारी मिली कि महासू का नाम अब बदलकर क्या हो गया है, शिमला हो गया है। लेकिन हमें कंप्यूटर से पूछना पड़ेगा कि इनका उत्तर सही है या गलत है। तो सर प्लीज आप बताएं कि इनका उत्तर सही है या गलत। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वेरी वेल डन। हम आते हैं टीम ई के पास। टीम ई, आपका फेवरेट नंबर, आपका नंबर है 2 और नंबर 2 के पीछे देखें जरा आपके लिए कितने अंक छिपे हैं। तो नंबर 2, ऑन विच डे द पारसी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज मेड एन यूनियन टेरिटरी। और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। का समय शुरू होता है। इट इज ऑप्शन बी, राइट आंसर, 1 नवंबर 1956। इनका उत्तर आया है 1 नवंबर 1946। टीमें, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? तो चलिए हम पूछते हैं कंप्यूटर महाशय से कि क्या ये सही है या गलत है। तो वेरी वेल डन, दिस इज द राइट आंसर। ऑन द ईयर 1956 हिमाचल वॉज मेड यूनियन टेरिटरी। क्या होता है? यूनियन टेरिटरी इट इज अंडर टेरिटोरियल काउंसिल। is under the central government, that is union territory. तो इस राउंड के हम अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं और आपके पास सिर्फ अब 4 अंक बचे हैं, उनमें से इवन 1 आउट। तो आप बताएं क्या चुनना चाहेंगे आप? 4। कोई खास कारण? बस वैसे ही। चलिए, तो कंप्यूटर जी नंबर 4 के पीछे देखे जाने के लिए क्या छिपा है। On 1st September 1972, 2 districts were carved out of the trifurcation of district Kangra. These 2 new districts were, ये 2 नए जिले कौन से थे? आपका जो ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। आपका उत्तर आया हमीरपुर एंड ऊना। आप क्या कहते हैं? करेक्ट। लेकिन हमें पूछना पड़ेगा इनसे। मुझे नहीं पता कि हमीरपुर ऊना है या नहीं है, तो पूछें जरा। और फॉर्चुनेटली इट इज द राइट आंसर। तो पहले राउंड के बाद हम अपने ऑफिशियल स्कोर के पास जाते हैं। हरीश जी प्लीज। After first round, every team had opened their account and scored 10 points each. So, यहाँ पर हमारे पास सब 3 क्वेश्चंस बचे हैं। तो सर एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए और ऑडियंस के लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है। तो ऑडियंस के लिए जो नंबर दूंगा वो मेरी चॉइस का रहेगा। दैट विल बी, मैम आप बताएं ऑडियंस का नंबर क्या होना चाहिए? 8। तो ऑडियंस के लिए नंबर 8। जो भी जिसको भी सही आंसर आता है वो कृपया अपना हाथ उठा दें। जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उसको आंसर देने का मौका मिलेगा। राइट? इज दैट राइट ऑडियंस? ओके, नंबर 8। Territorial Council was inaugurated in
Himachal Pradesh on 15th August 1957. Who was the chairman of this Territorial Council of Himachal Pradesh? और 4 ऑप्शंस हमारे सामने ये रहे। आप आगे आए। ए ठाकुर करण सिंह। आपका नाम? रवि शर्मा। किस स्कूल से हैं आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समरहिल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समरहिल से हैं, लेकिन हमें ये कंप्यूटर महाशय से पूछना पड़ेगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो राइट आंसर। विनोद सर, इसको थोड़ा पॉज करें और स्क्रीन को प्लीज थोड़ा सा ऊपर उठा दें। हाँ प्लीज उनको विनोद सर ये माइक ऑन कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2023 के दूसरे दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच में आज इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर शिमला डॉक्टर पूर्णिमा मैम, आपका हार्दिक डॉक्टर पूनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, जैसा कि हम सुबह से बात कर रहे हैं कि शिमला जो कि ब्रिटिश एम्पायर की समर कैपिटल रही है और इसका एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है, और इसी गौरवमयी इतिहास के सफर पर इस क्विज के माध्यम से हम सभी एक जर्नी थ्रू टाइम कर रहे हैं and we are treading through the city of 7 hills। जैसा कि आपके साथ मैंने अभी शेयर किया था कि रोम जो कि ग्रेट रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, that had been architected on 7 hills, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने भी ये जहन में रहा होगा कि हमारा एम्पायर इट इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेट रोमन एम्पायर, तो इसीलिए शायद शिमला को भी 7 पहाड़ियों पर बसाया गया था और बहुत करीने से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक एक मार्ग, एक एक बिल्डिंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ों से इस शिमला शहर को सजाया। और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम इस शिमला शहर में रह रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, एंड वी आर द पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। तो इसी ऐतिहासिक यात्रा पर इस क्विज के माध्यम से हम सभी एक समय यात्रा पर हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य यहाँ पर ACTBC मैम उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा मैम निरुपमा गुप्ता जी से, प्रिंसिपल पोस्टेड एट डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, कि मैम आप मंच पर आएं और प्लीज हमारे मुख्य अतिथि को एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देकर सम्मानित करें। मैम, आपसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज आप मंच पर आएं, और इस बीच तालियों की ध्वनि हमें लगातार सुनाई देती रहनी चाहिए। हमारा ये छोटा सा प्रयास है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट शिमला की ओर से, ये छोटा सा तोहफा मैम आपके लिए। मैम, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इन सभी प्रतिभागियों को आप अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। मैम प्लीज। Good afternoon all of you.
जैसे कि अभी सर ने इंट्रोड्यूस कराया, मैं डॉक्टर पूनम, AC to DC शिमला। तो आज डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के ऑफिस के सौजन्य से मुझे ये मौका मिला है कि उन्होंने आज मुझे इस ओपनिंग सेरेमनी जिसको ये बोल रहे हैं, हालांकि काफ़ी टाइम हो गए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने कोशिश की जल्दी आने की, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसी की वजह से मैं नहीं आ पाई। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हो पाऊँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये आपका क्विज अटेंड किया, 10-1 मिनट के लिए। तो जहाँ तक मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी तो आपकी अच्छी पार्टिसिपेशन है, बच्चे बहुत ही एक्टिवली और एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कोई भी कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, वो आप में कंपटीशन की भावना तो बढ़ाता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने पार्टिसिपेट किया और आपने पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीते ना जीते, आपको मेमेंटो मिले, ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे, आपने वो स्टेप लिया। जब भी आपके टीचर्स ने आपको चूज किया होगा कि ये 2 बच्चे जाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है। टीचर अपना कॉन्फिडेंस आप में पोज करता है कि ये 2 बच्चे मुझे अच्छे लग रहे हैं, अच्छा करेंगे। तो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भावना होती है कंपटीशन की, ये हमें जितने कम उम्र से इनकलकेट हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही बताने की कोशिश करती हूँ, बेटा पार्टिसिपेट करो, फर्स्ट मत आओ, सेकंड मत आओ, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करो, वही बहुत ज़रूरी है। जितनी कम उम्र में हमें ये भावना आ जाएगी, शायद मैं खुद पे अगर एग्जाम्पल लूँ, हमने अभी रिसेंटली, चलो 4-5 साल हो गए, अभी हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के, HS का एग्जाम काफ़ी टफ है, आप सभी जानते हैं। तो हमने भी बड़ी कम उम्र से, ये नहीं था कि HS बनना है या डॉक्टर बनना है, मुझे तो लगता है शायद 10th तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे क्या बनना है। तो लेकिन वो जो कंपटीशन की भावना थी, ये बहुत बचपन से थी मुझे। ये होना बहुत ज़रूरी है। आप फर्स्ट मत आओ, आप कुछ भी मत करो, असली जो पता चलता है वो +2 के बाद पता चल जाता है कि आप कितने उसमें हो, आप कितनी कर मेहनत कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी विल पावर। तो उसके बाद सब ट्रबल, सब हर्डल्स दूर हो जाते हैं जब आप में इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है। तो जितनी छोटी उम्र में आप में ये कंपटीशन की भावना आ जाएगी, इट विल पे यू इन अ वेरी लॉन्ग रन। तो बहुत कम उम्र से आप में वो कंपटीशन की भावना आ जानी चाहिए। जितनी कम उम्र में आएगी, आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो मुझे कंपटीशन की भावना बचपन से ही थी। हालांकि हम कोई बड़े बहुत अच्छे स्कूलों से नहीं पढ़े हैं, मामूली सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। तो लेकिन ये कंपटीशन की भावना थी कि कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा सुलेख लिख रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग बनानी है। तो इतने छोटी लेवल से भी आप कंपटीशन की जो वो है वो रख सकते हो। फर्स्ट आने तक तो बहुत माइंड डेवलप हो जाता है कि नहीं, ये फर्स्ट आया, अगली बारी मैं सेकंड आई हूँ, मुझे फर्स्ट आना है, मैं थर्ड आई हूँ, मुझे फर्स्ट आना है। तो आप किसी भी फील्ड में, ये आपका जिसमें भी शौक है, उसमें कंपटीशन की भावना जरूर लाएं। अभी भी आप में कंपटीशन तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली यू आर ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप कम्पीट कर रहे हो, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगी टीम। तो ये कंपटीशन की भावना जरूर रखें। कभी भी वही फल की इच्छा मत रखें कि मुझे टॉप ही करना है। अगर आप टॉप नहीं करें, बिल्कुल भी मायूस ना, आप कुछ भी नहीं लेके जा रहे, बिल्कुल भी मायूस ना। आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने पार्टिसिपेट किया। ये खुद को आप में कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, यार मैं यहाँ तक पहुंची, मैं यहाँ से आगे भी जा सकती हूँ, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आई कैन गो मोर फर्दर। तो ये जरूर चीज रखें। तो अभी ये जो आपका क्विज कंपटीशन था, ये बड़े ही रेलिवेंट टॉपिक पे था, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसकी फॉर्मेशन, उसकी कब तब से लेके अब तक हिमाचल कैसे बना। जो ये हिमाचल वाला कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जैसे +2 के बाद जाओगे, आप नौकरियों के लिए पेपर देंगे, तो अब जो HS का एग्जाम है उसमें भी 35% हमारी HP की जीके आती है। आप अभी से सीख रहे हो, हमें तो मतलब अपना सोचे तो मुझे नहीं पता था, मैं 7th-8th में थी कि HP की हिस्ट्री हमने किसी सिलेबस में नहीं पढ़ी, पर आपको ये मौका मिल रहा है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और बहुत ही अच्छी तरह से जो भी हायर एजुकेशन के ऑफिस ने, डिप्टी डायरेक्टरेट ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है, उन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स पोर किए हैं। तो इनको मैं बहुत इनकी को बधाई भी देना चाहूँगी इतने सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मौका दिया कि इस बार कुछ अलग ढंग से हमने आप लोगों को समर फेस्टिवल में के नाम पे इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो बाकी
लास्ट में यही कहना चाहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी जो आगे की तैयारी है बीइंग अ स्टूडेंट, अभी से अपना गोल सेट करें, अभी से अपना कोई एम सेट करें। जितनी जल्दी आप एम सेट करोगे, आप उतनी जल्दी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स वो ले पाओगे कि हमें कैसे आगे चलना है। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा था, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो पार्टिसिपेंट्स है, जो ऑडियंस है, उनके लिए भी उतना ही रेलिवेंट है ये चीज़। आने वाले टाइम में इट विल पे यू अ लॉट, क्योंकि HPGK का बहुत रोल होने वाला है। आप धीरे धीरे, अभी तो आप क्विज के लिए कर रहे हो, फिर आपको जबरदस्ती रट्टे से भी करना पड़ेगा, ये तो पढ़ना तो पड़ेगा ये, और आपको बहुत आगे इस उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। हिमाचल की जो हिस्ट्री और जो अभी करंट भी सब कुछ, तो अभी आपने जैसे हिस्ट्री पे लिया, तो अगली बारी मैं चाहूँगी कि हिमाचल के करंट उस पर आप कोई क्विज कंपटीशन कराएं, इससे भी बढ़िया ऑर्गेनाइज कराएं। अगर आप ज़्यादा ऑडियंसेस, उनके पेरेंट्स और लोगों को भी इन्वॉल्व कर पाते हैं, उनको भी करें। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आपका पूरा सहयोग करेगी। बाकी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से यही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम मैम, AC to DC डिस्ट्रिक्ट शिमला। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के अतिरिक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर निरुपमा गुप्ता, जो कि प्रिंसिपल हैं, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन US क्लब शिमला में। हमारे बीच में मौजूद हैं मिसेस मंजुला शर्मा, प्रिंसिपल। हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर राकेश समेत, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी। हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर सुरेश कुमार, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल घरेच। मैम लक्ष्मी नेगी, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे सहयोगी के तौर पर हमारे साथ जुड़ी रही हैं, जो कि क्लर्क हैं डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन में। और इस प्रतियोगिता को, इस इवेंट को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिनका बहुत अहम योगदान रहा है, मिस्टर पंकज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट शिमला, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ में मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, हमारी ये जो टीम CSC मैम इसको हम कहते हैं, CSC मीन चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हम सभी टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो वी कॉल इट एज अ टीम CSC डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो हमारी पूरी टीम के यहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में पिछले दिनों भारती फाउंडेशन की ओर से इन कोलैबोरेशन विद डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन जिला शिमला के स्कूल्स के लिए एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो भारती फाउंडेशन की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर ब्रिजेश भारद्वाज जी, जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं भारती फाउंडेशन। और आजकल जो भारत सरकार का एक जो कार्यक्रम है मिशन लाइफ, विच इज रिगार्डिंग टू सेव द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसके तहत समाज को जागरूक करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो भी इन्हीं के सौजन्य से जिला शिमला में आयोजित किया जा रहा है। तो इस कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर पंकज शर्मा को, डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट शिमला, कि वे मंच पर आएं और इस कार्यक्रम में पधारने पर हमारे मुख्य अतिथि के शान में 2 शब्द कहें। मिस्टर पंकज शर्मा। इंटरनेशनल समर फेस्टिवल, जिसका आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा 1 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ पे रिच मैदान में किया जा रहा है और इसके आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज 2 तारीख को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो जिला के द्वारा रखा गया है और जिसमें डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारने पर AC to DC मैम पूनम मैम, आपका मैं स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसलिए भी कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के ऊपर जो आपने विश्वास रखा है कि हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को और बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि वो इस क्षेत्र में और ज्यादा उन्नति कर सकें और ज्यादा बढ़ सकें।
मुझे याद है एक समय ऐसा था कि शायद ये कार्यक्रम नहीं आयोजित होता, और ये जिस तरह से आपने बढ़कर के हमें सपोर्ट किया है, मैं विशेष तौर से पूरे के पूरे विभाग की तरफ से, हमारे मुखिया डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन और समस्त हमारी जो यहाँ पे टीम है सभी की तरफ से आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका एक प्रमुख जो योगदान है मैं सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी टीम मेंबर्स का, जिसको लीड कर रहे हैं निरुपमा मैम, और सभी प्रिंसिपल जो हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं, लेक्चरर्स, और सभी हमारे जो एस्कॉर्ट टीचर्स यहाँ पे आए हैं, सभी बच्चे जो यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका सभी का योगदान है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारती फाउंडेशन से हमारे बीच में जो यहाँ पे डायरेक्टर आए हैं। हमारा पिछला जो कार्यक्रम लाइफ मिशन जो चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, इस कार्यक्रम को ये जो भारती फाउंडेशन है इनके साथ हम कोलैबोरेट करके डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए काफी लंबे समय से इस कार्यक्रम को हम कर रहे थे। और इस कार्यक्रम में 2 प्रतियोगिताएं जूनियर और सीनियर कैटेगरीज में आयोजित की गई थी, पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। इसमें हमने पिछले कल रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए हैं, और आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो है उसको पूरा का पूरा भारती फाउंडेशन जो है सपोर्ट कर रहा है। मैं विशेष तौर से भारती फाउंडेशन और आपके सभी सदस्यों का भी धन्यवाद कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी वजह से ही आज हम इस कार्यक्रम को इस लेवल पे ला पाए हैं कि हम बच्चों को आज सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनको एनकरेज कर पा रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और जैसा कि इससे पहले मुख्य अतिथि महोदय ने भी कहा कि ये कार्यक्रम आपके करियर में और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सहायक सिद्ध होगा, इसी उम्मीद के साथ मैम विद योर ड्यू परमिशन क्या हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यू कर सकते हैं? मैम इसको जैसा कि मैम ने कहा अभी कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो रामपुर हैं, रामपुर विषय है, जो कि हमारे शायद यंग एस्पायरेंट्स रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के, सौभाग्य से वह हमारे मध्य यहाँ पर कुछ देर में पधार रहे हैं, और इच्छा थी कि उस आप सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाएं और आपको कुछ मंत्र दे सकें सफलता का, और आपको मोटिवेट कर सकें। तो जब तक हमारे जो अगले अतिथि हैं हमारे बीच पधारते, तो मैम तब तक हम कंटिन्यू करें। तब तक हम अपना जो क्विज का सेकेंड राउंड है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारते हैं, तो देन वी शैल बी कंटिन्यू विद दिस सेशन। ओके। तो नेक्स्ट राउंड के साथ एक छोटे से पॉज के साथ हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हैं, और पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका था। पहला राउंड हमने शुरू किया था फ्रॉम A to F, और नेक्स्ट राउंड वी शैल स्टार्ट विद टीम F in anti-clockwise direction. Is that right? Okay. So, team F, what do you think?
time will tell. I think that was the first play which was जिसका कि मंचन किया गया था इस ऐतिहासिक गेटी थिएटर में. कभी गेटी थिएटर गए हो आप? जो ओल्ड टैवर्न हॉल है, गए वहाँ पर? कभी कोई प्रस्तुति आपने देखी है? नहीं, मौका नहीं मिला तो जरूर देखें. हमारा जो अगला राउंड है that is about the architecture. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस राजधानी को बहुत ही करीने से सजाया गया था, तो यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. तो इसी से रिलेटेड आपके ये प्रश्न रहेंगे. तो फिर से हम आते हैं कि आपका फेवरेट लकी नंबर कौन सा है? नंबर 4. चलिए देखिए नंबर 4 के पीछे आपके लिए क्या है. On which occasion this postal stamp depicting the famous Gaiety Theatre, इसमें कि आप अभी बैठे हैं, of Shimla was released? आपका प्रश्न है. ऑप्शंस नहीं होंगे, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑप्शन वाला सिर्फ एक राउंड था, और आपको ओकेजन का नाम बताना है. ऑन विच ओकेजन, ओकेजन क्या था, कौन सा ओकेजन था वो जिस पर ये फेमस जो डाक टिकट है इस फेमस गेटी थिएटर का वो रिलीज किया गया था. आपका समय शुरू होता है अब. हिंदी में इसे कहते हैं गेटी प्रेक्षागृह परिसर. नो आइडिया. ओके, हम आते हैं टीम एफ, टीवी. कोई आइडिया नहीं है? ओकेजन आपको बताना है, क्या ओकेजन था? टीम सी. हिमाचल डे 2014. नहीं, हिमाचल डे 2014. 100 years of नो आइडिया. 2014 तक तो बात ठीक बैठती है, लेकिन इट वॉज नॉट हिमाचल डे. लेकिन इसका सही आंसर जो है, आप भी काफी क्लोज थे, हम कंप्यूटर से पूछेंगे इसका सही आंसर क्या है. इट वॉज कंप्लीशन ऑफ 125th year of its establishment, right? And it was established in the month of May. ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है. तो कोई भी टीम इसका उत्तर नहीं दे पाई, तो टीम एफ कोई स्कोर नहीं कर पाए इस राउंड में. टीम एफ 0. यस, हम आते हैं टीम ई के पास. टीम ई, आपका नंबर 7. देखें जरा नंबर 7 के पीछे आपके लिए क्या है. आइडेंटिफाई दिस बिल्डिंग which was gutted in fire in the year 1993 and now has a majestic hotel at this place. ये बिल्डिंग आप पहचाने? 1993 में फायर में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और एक बहुत आलीशान होटल इसकी जगह पर है. और आपका समय शुरू होता है अब. इट इज पीटर हॉफ. इनका आंसर आया. चलिए हम टीम डी से भी जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या है. इट इज पीटर हॉफ. चलिए टीम सी, आपका क्या कहना है? वाइल्ड फ्लावर हॉल. इट्स वाइल्ड फ्लावर हॉल. पीटर हॉफ भी एक होटल है या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक ऑफिशियल गेस्ट हाउस है. चलिए देखें ये जो कंफ्यूजन है ये कंप्यूटर जी दूर करेंगे. इट इज वाइल्ड फ्लावर हॉल.
क्योंकि पास्ट क्वेश्चन था और टीम सी ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया, तो टीम सी को मिलते हैं 5 अंक। टीम सी हार्ड लक टीम में, दिस इज द लक कि आपके पास कौन सा प्रश्न पहुंचेगा। 1993 में ये होटल आग में ध्वस्त हो गया था एंड नाउ इट हैज अ मैजेस्टिक होटल। उस होटल का नाम क्या है? होटल वाइट मालूम विच ग्रुप? SPDC. It is not SPDC. It is Oberoi Group. Right. हम आते हैं टीम डी के पास। Are you ready? आपका फेवरेट नंबर, नंबर 3। आप क्लियरली देख पा रहे हो स्क्रीन को? सर नंबर 3, identify this famous building where the idea of Indian National Congress was conceived by Sir A.O. Hume, Alan Octavian Hume। आपका समय शुरू होता है अब। आप सोचें और रोथनी कैसल। इनका जवाब आया है रोथनी कैसल। टीम सी, टीम बी, टीम ए। लक्कड़ बाजार वालों को ज्यादा पता होगा शायद रोथनी कैसल के बारे में। क्यों? लक्कड़ बाजार और कौन सा स्कूल है पास में? क्या आपको उत्तर सही है? Yes sir. क्या जानते हो रोथनी कैसल के बारे में? Yes sir. सर ये यहाँ पे AU में सर 1885 में कांग्रेस को फॉर्म किया था एज द फाउंडर ऑफ द INC, और सर ये बेसिकली चाकू बेसिकली है। ओके, तो हम पहले जान लें कि आपका उत्तर सही भी है या गलत है। कंप्यूटर जी क्या कहते हैं इनसे तो जान लें हम। इसी बीच में हमारे बीच में STM रामपुर है, तो प्लीज करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत करें। STM कोड का है। ओके, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम शिमला और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर एक क्विज कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं। दिस कंपटीशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला इन कोलैबोरेशन विद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला। बिफोर दिस वी हैड अ प्रिलिमिनरी राउंड ऑन काहूत प्लेटफॉर्म और 21 स्कूल्स जो जिला शिमला शहर के हैं इस पर पार्टिसिपेट किया। And these are the 6 finalists. So, sir, can we continue with it? Yeah, sure. Okay, thank you, sir. Okay. Sir, मेरा गुजारिश रहेगी सर से कि प्लीज मंच पर आए, और क्योंकि अभी HS एस्पिरेंट रहे हैं सर, और आपके बीच में आपके जीवन के लिए सफलता के लिए जो मूल मंत्र है वो सर आपके सामने रखेंगे। सब प्लीज। I think lunch वाला टाइम हुआ है, so very warm good afternoon to all। जितने भी यहाँ आप लोग सभी आए हैं, स्टूडेंट्स, एस्पिरेशंस और यहाँ पे जो लोकल लोग आए हैं, तो आई वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिमला की तरफ से, और हम तो आए आउटसाइड फॉर, मैं भी आपकी तरह यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ आज मीटिंग के पर्पज से। तो ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई वेलकम यू ऑल। आप सभी यहाँ पे आए हैं हमारे कार्निवल, इसको एंजॉय समर कार्निवल को अपन एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड स्पेशली जो आज की थीम है, इसी मैम पूनम मैम ने आज जैसा हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक हमारे क्विज कंपटीशन रखा गया बच्चों के, तो आई थिंक बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। तो जितने भी यहाँ पे टेस्टिंग स्टूडेंट्स और स्कूल्स की तरफ से आए हैं, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत वेलकम एंड माय बेस्ट विशेस। जैसा कि आपने बताया इट हैज बीन एलिमिनेटेड होके जो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक जो भी स्टेज है, मतलब यू हैव बीन सिलेक्टेड, उसके बाद आप सिलेक्ट होकर यहाँ पे आए, तो में एक अचीवमेंट है। और अभी आपका भी जो फर्दर जो आपके राउंड रहेंगे क्विज वाले, तो माय बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और साथ ही साथ बिकॉज ज़्यादा तो कुछ कहने के लिए नहीं है, बट स्पेसिफिकली आई टॉक ऑन थीम
जो भी एक आपका जीके और क्विज वाला जो हमारा रहता है। सो बेसिकली इट्स एन एप्टीट्यूड जो आप एक लाइफ में लेके चलते हैं, आपके आसपास क्या आपकी गतिविधियाँ और व्हाट्स हैपनिंग करंटली वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, आपके डोमेस्टिकली नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। सो ये एक आपको, अगर मैं इसको एक पहलू और एक डायमेंशन अगर हम बात करें, तो जस्ट नॉट कि आपने पढ़ाई के लिए आपने एक वेल ऑफ और वेल नोन होने चाहिए, वेल रीड आप एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे एज एन पर्सन और एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। आई थिंक दैट्स फर्स्ट प्राइमरी और की मोटिव जो क्यों आप लोगों को इस चीज में इतना इन्वॉल्व और एक अपडेशन होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये चीजें आप अपने राइट्स और आपकी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उससे भी अवेयर करवाती है। बिकॉज नाउअडेज वी कैन सी कि लोग पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में कहीं आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जब तक लोग उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं और एज अ गुडविल एम्बेसडर, क्योंकि हम ही लोग वो लोग हैं जो कुछ ऐसी समाज में कुछ चेंज या ऐसा रेवोल्यूशन लाना है, तो जितने अवेयर सिटीजन होंगे तभी एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में आ पाएगा। तो बॉटम लाइन मैं इसी के उसके साथ में कहूँगा कि आप लोग जो भी आज यहाँ पे ड्रीम टीम होगी तो वो एक आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट समर जो आज हमारा फेस्टिवल हो रहा है उसके लेवल पे, और आपकी अपनी पर्सनल जो आपकी एकेडमिक लाइफ है उसके लिए। एंड रेस्ट ऑफ द जो कंटेस्टिंग टीम जो भी रहेगी, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एटीट्यूड जो भी आपका प्लेस या रैंक रहेगा तो उसके बाद भी और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। सो अंत में यही कहना चाहूँगा, यही आप एटीट्यूड और यही एप्टीट्यूड लाइफ में लेके रखिए कि हर दिन एक नया सीखने को मिले और वो नॉलेज आप इम्पार्ट कर सकें सोसाइटी में आप अपने छोटे भाइयों के साथ, और जो भी आपको लगता है कि किसी साथ हमें एज अ पॉजिटिव चेंज अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ क्योंकि आपका राउंड भी कंटिन्यू होना है तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान दूंगा, और साथ ही साथ जितने पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं सभी और जितने भी उनके भाई बहन या उनसे भी एक गुजारिश रहेगी कि ऐसे ऐसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, जीके क्विज और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम ये देखें, तो ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप ही मोटिवेट करें बच्चों को। बिकॉज आजकल समाज में हम देखते हैं हमारा यूथ एक ड्रग और जो एक हमारी काफी मतलब ड्रग अब्यूज को लेके काफी हमारा समाज में प्रचलन हो गया है, खासकर हमारे जिला शिमला में, क्योंकि अब आए दिन देखते हैं बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें खासकर हमारा युवा पीढ़ी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये चीजें युवा को एज ए ऑप्शन और एक एज ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे अगर एक ऑप्शन डेवलप नहीं किया जाएगा, उनके सामने उनको पोर्ट्रे नहीं किया जाएगा, तो आई थिंक तब तक हम ड्रग और ये जो नशा जैसा कुरीति हमारे समाज में आ गई है तो उसको इफेक्टिवली टैकल नहीं कर पाएंगे। शासन प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं हर लेवल से, प्रदेश सरकार द्वारा भी बहुत तकड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि नशा कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन ये एक मेंटली वो है कि अगर आदमी का दिमाग इन सब चीजों में डाइवर्ट रहेगा तो ऑब्वियसली विल बी अ गुड पर्सन और हेल्थ वाइज पॉइंट ऑफ व्यू। तो वंस अगेन आई कांग्रेचुलेशंस ऑल एंड माय बेस्ट विशेस आपके नेक्स्ट राउंड के लिए, एंड बिग कुडोस टू ऑल ऑर्गेनाइजिंग टीम जितने भी यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कोलैबोरेशन के साथ जिला प्रशासन ये इवेंट करवा रहा है, तो आप सभी के कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी तरफ से आज इतना ही, जय हिंद जय भारत। तो अभी हमारे बीच में थे मिस्टर निशांत तोमर जी एसटीएम कोर्ट में। थैंक यू सो मच सर। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस राउंड के साथ। तो आपका उत्तर आया था रॉथनी कैसल, और रॉथनी कैसल वाज द राइट आंसर, एंड दिस राइट आंसर यू गेट 10 मार्क्स। और हम आते हैं टीम सी के पास। टीम सी नंबर 5। नंबर 5 खास कारण नंबर 5 नो सर। ओके, तो नंबर 5, identify this heritage building which was the residence of erstwhile king of princely state of सिरमौर। सिरमौर रियासत के जो किंग होते थे उनकी ये बिल्डिंग थी, और इस फेमस बिल्डिंग को आप पहचाने। आपका समय शुरू होता है अब। बेंटनी कैसल यहाँ पर उत्तर आया है। करेक्ट है। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? इसका करेक्ट आंसर बेंटनी कैसल ये कहां पर सिचुएटेड है?
बेंथनी हिल। और ये बेंथनी हिल कहाँ पर है, कोई लैंडमार्क? नियर ग्रैंड होटल एंड आउटलेट। नियर ग्रैंड होटल एंड सीटीयू बिल्डिंग के साथ में। इसके अलावा और कोई लैंडमार्क? एंड यूको बैंक की बिल्डिंग के साथ में YMCA है साथ में, सॉरी YWCA है साथ में, नॉट YMCA। चलिए, हाँ, लेकिन हमें वो पूछना पड़ेगा यार, ये सही है कि नहीं है, तो प्लीज बताएं ये सही है। इन्होंने आंसर दिया है बेंथनी कैसल। बेंथनी कैसल सिरमौर रियासत के इसका ऑफिशियल रेजिडेंस था, और इसी के साथ टीम सी को मिलते हैं 10 अंक। हम आते हैं टीम बी के पास। आपका नंबर? नंबर 6। देखिए नंबर 6 में क्या है आपके लिए। आइडेंटिफाई दिस बिल्डिंग वेयर अ फेमस हॉस्पिटल इज सिचुएटेड प्रेजेंटली। इस बिल्डिंग को पहचाने, और ये बिल्डिंग तो अब वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती उस जगह पर, बट a famous hospital is situated at its place. Your time starts now. आपका उत्तर KNH आया है, लेडी रीडिंग आया है। चलिए हम बाकी टीम मेंबर से भी जान लेते हैं। स्नोडन और IGMC। स्नोडन और IGMC। स्नोडन तो लग नहीं रहा है ना। स्नोडाउन, रिपन हॉस्पिटल का प्रेजेंट नाम क्या है? DDU, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। टीम सी, आप क्या कहते हो? शिमला सैनिटोरियम। इट इज शिमला सैनिटोरियम। चलिए हम पहले ऑडियंस से जाने या इन्हीं से पूछ लें, ये क्या कहते हैं? चलिए ये क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं जरा कि ये बिल्डिंग कौन सी है। एंड दिस इज द बिल्डिंग ऑफ स्नोडाउन, और इसकी जगह पर एक फेमस हॉस्पिटल है आज। तो वी ऑल्सो हैड क्रेडिट अलॉन्ग विथ यू फॉर मेकिंग दिस क्विज। जो बुक्स शायद आपने पढ़ी है, वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, एंड इन आई थिंक इन AC book you will find this picture. So this is Snowdown, और आपका आंसर आया था KNH। स्नोडन। और आंसर was स्नोडन। इनका आंसर था स्नोडन। तो किसको अंक मिलने चाहिए? टीम ए को कितने? 5 points, 5 points to टीम ए। और अब टीम ए का अपना सवाल, और टीम ए का अपना नंबर, और टीम ए की अपनी किस्मत। और आपका नंबर है 9। कोई खास कारण 9 नंबर के पीछे? नहीं, ऐसा कोई खास कारण नहीं है। तो आर यू एंजॉयिंग द क्विज? ओके, तो देखें नंबर 9 के पीछे आपके लिए क्या छिपा है। नंबर 9, नेम द आर्किटेक्ट ऑफ दिस फेमस बिल्डिंग। इस फेमस बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था, एग्जीक्यूट किया था, उनका नाम आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। सोच लो पहले। I guess it's Henry Irving. इट इज, इनका उत्तर आया है हेनरी इरविन। क्या बोलते हो? इट इज लॉर्ड हेनरी इरविन। जरा बताएं कि क्या उत्तर है इसका। इट इज हेनरी इरविन। और हेनरी इरविन के द्वारा शिमला में और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की गई थी। कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। इनको 10 अंक मिलते हैं। तो अगला राउंड जो है, अगला प्रश्न है ऑडियंस के लिए। ऑडियंस जवाब देना चाहेंगे? खेलना चाहिए आप लोग भी? ओके, नियम वही रहेगा, जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा, he or she will be given the
chance. और जो नंबर कौन सा होगा वो हमें बताएंगे मैम निरुपम. नंबर 2. देखिए नंबर 2 के पीछे क्या है? The historical name of this building is Barnes Court. Nowadays, this building is the official residence of whom? किसका official residence है ये? अब किसने हाथ उठाया सबसे पहले? चलिए आप उन्होंने उठाया? गवर्नर हाउस. गवर्नर हाउस इन्होंने कहा. उधर से भी एक जवाब आया था हमारे पास. चीफ मिनिस्टर नहीं, जवाब तो एक ही सही होगा, या गवर्नर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा. तो इसका सही उत्तर तो हमें यही बताएंगे. मुझे भी नहीं मालूम है कि इसका सही उत्तर क्या है, तो कंप्यूटर जी हमें बताएं इसका सही उत्तर क्या है. इट इज रेजिडेंस, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. हरी सर, इनको जरा नवाजें आप चॉकलेट से. तो इसके साथ हमारा ये राउंड यहां पर समाप्त होता है. जैसे कि हम देख पा रहे हैं, टीम ए और टीम सी 25-25 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. दे आर क्लोजली फॉलोड बाय टीम डी पोर्टमोर विद 20 मार्क्स एंड द टीम बी, ई एंड एफ ईच आर हैविंग 10 मार्क्स. तो वेरी बिग हैंड टू ऑल द टीम्स. अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है अभी. तो अगले राउंड के लिए अगला हमारा एमसीक्यू हो गया, आर्किटेक्ट हो गया. आपके साथ में रहेंगे प्रदीप सर. प्रदीप सर प्लीज. तो आगे बढ़ते हैं. शिमला द कैपिटल, जिसे लेकर हम आज ये एक क्विज कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं. अभी तक हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं. इसके बाद 3 राउंड हमारे पास बचे हैं. इसमें से अब हम लेकर चलते हैं जियोग्राफी और डेमोग्राफी से. इससे संबंधित कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं. और ये सेकंड राउंड एंटी क्लॉकवाइज चला था. तो थर्ड राउंड जो है, विल स्टार्ट दिस वन फ्रॉम टीम सी. वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम टीम सी दिस टाइम. पहला मौका हम टीम सी को देंगे और इसे जो है हम क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे. तो रेडी टीम सी? Ready with your number? Which number? 2. Okay. 2 बैठे हैं और ने कहा हमें 2 ही नंबर चाहिए. तो let's see what's ahead in number 2. And this is the question for you. What is the total population of Shimla city according to the census report of 2011? ठीक है ये, ठीक है ये. डेमोग्राफी. Yes. Around 60 lakhs. Your answer is around 60 lakhs. This was your answer. Let's see is it correct or not. We will follow clockwise and we will move to. Sir, this is the. This is 1,46,060. It is of Shimla city. It is not of Himachal Pradesh. Your question was for
Shimla city, not for Himachal. Sir, इस question को cancel करें, because this question has to be passed to all the teams. So this question stands cancelled. हम next question के साथ आपके साथ शुरू करते हैं. Okay, we will take next question because answer that was projected before we moved. So this stand cancelled and we'll take in another. Three. Stand number 3 is project number 3, and this one is your question. That is, on which year Kalka Shimla railway line opened for public traffic? 1903. The answer 1903. Yes, this time should we move here? What's your answer? 1903? No? Yes? Okay. 1903 is the answer from here. Is any other answer? 1903? All agreed? Let's see. Is it right or wrong? Answer please. Okay. 1903 is the right answer. Full 10 points to Team C. So we will move clockwise. तो अगला मौका Team D को देंगे. हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल जो है मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर जहाँ पर प्रेजेंट दिखा रहे हैं. Your number 1. Okay, number 1 question. And question for you is Indian Institute of Advanced Studies. अभी हमारे पास एक पिक्चर आई थी सामने. Situated on which hill? A quick answer is Observatory Hill. तो यहाँ से एक उत्तर आया है हमारे पास. It's fine कि क्या ये सही होगा? Yes. Yes. Okay, thumbs up. हमारे पास thumbs up आया है. तो देखें, पर हमारे पास अभी समय का चक्र चला हुआ है. तो फिर हम देखते हैं आंसर. देखें कंप्यूटर जी क्या कहते हैं. बिल्कुल ये आपके साथ है. Observatory Hill is the right answer. Full 10 points to Team D. Team E तैयार है 10 points के लिए. Which number will you get 10 points? 9. Okay. Okay, number 9. Question please. In which earthquake zone the Shimla city falls according to earthquake zoning map of India? And your time starts now. Different earthquake zone है, कौन सा है? Third, मैंने कहा कि it is in third, that is zone 3. Okay, let's find out. You want to say something? Zone 4. Okay, Team F says zone 4. Yes, team A. Zone 4. Zone 4. Zone 4. Majority of they say zone 4. तो देखें कंप्यूटर महाशय आंसर प्लीज. Yes, it is zone 4, not zone 3. So 5 bonus point to Team F. Now it's your turn. So your number? 8. Number 8. Selected number 8. Question, please. And your question is the names of 6 hills of Shimla are Jakhu, Prospect, Observatory, Inveram, Bantry, and Summerhill. Name the 7th one. This is the main hill.
starts. Time's up. This question passes to team A. Elysium Hill. The seventh one is Elysium Hill. Elysium. 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 Let's see. Computer master क्या कहते हैं? Yes, it is Elysium Hill. The right answer comes from Team A. 5 bonus points to Team A. Now it's time to get 10 points. Which number? Number 5. This project number 5. What is the average literacy rate of Shimla city according to the census report of your year 2011? And your time starts. I guess it's 93.63%. They said 93.63%. Is it right? Around 81? Around 80? 83.90? Around 80? Around exact answers. 93.63. Okay, this fraction number might become up and down. It's no matter. Let's see what is the right answer. 93.58. In some books it is written 93.63. So the 93.63 answer is also right answer. For 10 points for team A. Yes, team B, your number. Lucky 7. So let's see. What is it lucky for you? And your question is, name the famous wildlife sanctuary of Shimla city, which also have a century-old water harvesting plant to supply water to Shimla town. And your time starts. Gumma, water supply, somewhere else it is, or it is in Gumma. Name. Shimla catchment Kufri. Shimla catchment area. Shimla catchment area, Kufri. Yes. Shimla water catchment. Shimla water catchment. Shimla water catchment. So let's see what computer says. It is Shimla water catchment wildlife sanctuary. So who said first? That is Chapsley, team C. They get 5 bonus points for this question. Now it's a turn. Your turn. Your turn first. That means you're completed. Yes, completed, sir. So this round is up. And one question for audience. And one question for audience. So, Samrit sir, which number? This time number 4. Number 4, sir. And this is for you all. The famous waterfall of Shimla city is known by what name? Yes, sir. Sir, it is Chadwick Falls. Chadwick Fall. It is Chadwick Fall. Okay, ये हमारी सब audience को मालूम है. So with this we complete geography and demography round.
Okay, so after this round, score please from our official scorer. After 3 rounds, Team A or Team C, there is a tie between them. Team B, second place with 30 points. Team B 10 points, Team C 10 points, and Team F 15 points. Team A and Team C both are on the same points, 40 points. Thank you, sir. So let's move to the next round, and next round, that is polity related to various kinds of agreement, etc., and personalities, etc., with which this historical place, that is Shimla, is associated. So some simple questions of this polity, and we will start this round from Team D. Okay, the first chance will be for Team D, and we'll move anti-clockwise this time from D, and we'll end up with E. Okay, so select your number 1. That is the number 1. So let's see what's there in number 1. Which country's government in exile had its headquarters at Shimla during the year 1942 to 45? Your time starts now. Burma. We get a very good answer. Burma. So all agree with Burma? Let's see. ये भी हमारे साथ agree होते हैं. Answer please. हमारा भी समय का चक्र घूम रहा है, तो समय से पहले ही हमारे पास ये आंसर आ चुका था. Let's see the answer. Yes, it is Burma or Myanmar. The full 10 points to Team D. Yes, Team E, ready with your number? 2. Number 2. Number 2. And your question is, Mahatma Gandhi has visited various times in pre-independence time, and the question for you is, in which year Mahatma Gandhi visited Shimla thrice in a single year? Your time starts. In which year this happened? 1937 is the answer from Team E. Let's see, is it right? 1935. 1931. It should be the anti-clock. So 1931. We got the answer from there. 1931. Let's see. Team C. 1945, 1931, 1931. They have given their answer. This one is, let's see what the right answer is. It is 1931. 1931 is the right answer, and we got it from the Team D. So Team D gets 5 bonus points for this question. So you two have the questions. Now it's Team C. It's time to Team C. Number 4. Number 4. राउंड कहाँ से शुरू करा था? From Team D. है? D से. D से शुरू करा. D C. Okay. अच्छा. Clockwise. ऐसे चला ना राउंड. आपसे ओके. इनका क्वेश्चन था ना. टीम बी से राउंड शुरू हुआ था. फिर इनका क्वेश्चन हो गया था. F को देते हैं. आपका क्वेश्चन है. Okay. We'll give a chance to this because second chance was given to Team E.
So we will give it a chance to team F. Tibet. They gave the answer, the Shimla Convention of 1912 जो है, and the third answer is, your answer is Tibet. They gave their answer, Tibet. So we will start this one from here to team A. The Shimla Convention of 1914. Tibet, Afghanistan. Yes, team D? No idea? Team E? Okay, let's see what's the right answer is. It is Tibet. Full 10 points for team F. Now it's the turn of team A. Number 7. Team A, number 7. See what your question is. On 1st June 1939, Himalaya Riyasati Prajamandal was launched at Shimla. The first president of this Prajamandal was. And your time starts. I guess Pandit Padamdev of Jubbal. This is Pandit Padamdev of Jubbal. Pandit Padamdev of Jubbal. No idea. Pandit Padamdev. Pandit Padamdev. Pandit Padamdev. We got the answer. Pandit Padamdev. Let's see. Will it matches with us or not? Yes, it is Pandit Padamdev. Right answer. Full 10 points to team A. Team B. Ready? 9. Number 9. And your question is, the famous building of Shimla, named as LSV, presently houses which important government office or institution? And your time starts. HP Secretariat is the answer from team B. HP Secretariat. D team also agrees. E also says. F also says. Your team A also says. And it's the time to answer. Yes, we check it with computer also says.